आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो क्या? नहीं नहीं, मेरे को ये वाला मिल्क बहुत पसंद है। ये जो बनता है ये तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बस वार्म हुआ रेस कर दिया। अच्छा, बहुत 3 2 1 यस। अब देखो बीच बीच में है इसका रेज लेवल, कैपुचिनो जितना भी नहीं है और लेकिन फ्लैट वाइट जितना भी नहीं है। क्लास अगेन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पॉपी हियर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मेरा कॉफ़ी क्लास है, मेरा फर्स्ट डे है, पर लेट हो गया थोड़ा सा क्योंकि हम रेडी करने में थोड़ा बहुत ही लेट कर दिया है, इसलिए ये है मेरा फाइनल लुक। पर दिखा नहीं पाया, मैं रेपिडो से जा रहा हूँ अभी, जस्ट थोड़ा सा लेट हो गया है, पता नहीं 15 मिनट 20 मिनट पहुँचेगा होगा। फर्स्ट डे में मैंने लेट कर दिया। एक्चुअली मैं इसलिए लेट हो गया हूँ क्योंकि वो लोग ने टाइम हमको 10:30 दिया था, बाद में फिर वो लोग ने एक्सटेंड कर दिया था 11 को। तो मैंने एडवांस उठा था, पर मैंने सोचा थोड़ा टाइम है बोल के मैंने ऐसे बैठा, तो मेरा इसलिए लेट हो गया। तो मेरा रूम से वहाँ पहुँचने के लिए ग्रीन पार्क सिर्फ 20 मिनट्स लगते, तो ट्रैफिक होने की वजह से रास्ता में लेट हो गया है। कोई बात नहीं। मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद भी मैंने लीव को लिया है, पर एक्चुअली लीव जो विदाउट कार्ड का नहीं चलता, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं लीव का लिया तो वो नहीं चल रहा। फिर वापस सीढ़ी से होके जाना पड़ा क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो सेकंड फ्लोर में था। अब मेरे साथ बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉफ़ी सीखने का, कॉफ़ी का जो टेस्ट, फ्लेवर, वैरायटी ऑफ कॉफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। मेरे साथ बने रहना। By the name Kaldi. So he was just roaming around. This was back in 9th century, like way back 9th century में एक shepherd था by the name Kaldi. He was just roaming around with his goats. So what he noticed was that his goats ate certain kind of fruit, and then they were like jumping here and there. So this was very odd for him, that why are these goats jumping, and this is very odd. So he took that fruit, he ate himself. तो उसको भी लगा that yes, there are some kind of energies happening and there is some energetic feeling. So he took that fruit, gave it to a monk, and what monk did was, monk said that because it is giving you energies, maybe it is a bad influence. So he just took the fruit and threw it into a fire. That is how we got our first roasted beans. It was just an accident. But with that, the coffee started to accelerate around the world. And because it was first used as prayers, it was used by a monk. So what it was spread around the countries where prayers were more eminent, like in the Gulf countries. वहाँ पर ज़्यादा स्प्रेड हुआ। पहले क्या होता था, कैफेज की जगह देयर वर दिस छोटे छोटे कैफेज पॉपअप्स खुलने लगे, जिनको दे यूज्ड टू कॉल इट एज इंटेलेक्चुअल स्पेसेस, लाइक ओनली political, intellectual talks were happening there, and people used to have coffee, and it was spreading very widely, right? Then, but how did coffee came to India? So there was this saint by the name Baba Budan. Okay? Baba Budan, he was just traveling to Makkah, Medina. The Muslims में there is a saying that you need to visit Makkah, Medina once in your lifetime, and you need to pray there. So he was going there. He tried coffee there. He fell in love with coffee. So what he did was he took 7 beans and smuggled back them to India, right? And he took green beans, not the roasted beans. So how did it smuggle? There is a conspiracy behind it. There are 3 theories to it, that he smuggled in his beard, either in his walking stick or in his belly button. We are still not aware. They are just conspiracies. But he took 7 beans, came back to India and planted them in Chandragiri Hills in Karnataka. Okay? He planted them in Chandragiri Hills in Karnataka. Still the best beans are sourced from Chandragiri Hills. Right now we have renamed those hills to Baba Budangiri Hills because he started. So वहाँ से इंडिया का सारा plantation वहीं से start हुआ with those 7 green beans. Currently all of the major growing regions in India are in southern part. Mainly Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Orissa. All of these regions are the main producers of coffee in India. Why is that?
Because for growing coffee we need certain tropical conditions, like temperature should be between 20 to 35 degree of Celsius, right? There should be mist. So ऐसी conditions हमारे नॉर्थ में कहाँ है? दिल्ली में नहीं हो सकते, यहाँ सब इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती है. Why we have started producing in northeast within the last 5 years is only because of global warming. If we understand it, before 5 to 7 years, it was very cold, right? Northeast was very cold for us to grow coffees. Now because of global warming, तो थोड़ा सा hot हो गया and it is good there, but it shouldn't happen obviously. And ऐसा we believe further if the global warming is imminent further, तो हम हिमाचल में भी उगाने लगे शायद, लाइक सारे पहाड़ों में हिमालयन कॉफीज में भी इट्स अ सीन देयर, बट लेट्स सी. इट शुडंट हैपन दो, बट लेट्स सी. देन कॉफ़ी, अगर हम बेसिक्स थोड़ी सी बात करें, कॉफ़ी इंडिया में तो इंट्रोड्यूस हुई थी विद साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी. डू यू नो व्हाट इज इट? डू यू नो साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी? Okay, so this is a South Indian filter coffee. Okay. What happened was they used to, there are two chambers with it. One is a coffee brewing chamber and one is a decoction chamber. They put coffee, grounded coffee, mixed with chicory. Now what is chicory? I don't understand. So Sweetener. chicory, sorry? Sweetener, some kind of. No, not sweetener. Yeah. What is, so let's talk a little of कॉफ़ीज़, इंस्टेंट कॉफ़ीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. वाई वर इंडियन इंस्टेंट कॉफ़ीज़ में, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पहले क्या होता था, कॉफ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. इट वुड टेक लाइक 15 मिनट्स 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर तो ये पॉसिबल नहीं है. तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो सब इन्वॉल्व थे, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था. तो तब हमने इंस्टेंट कॉफ़ीज़ बनाई कि इंस्टेंटली कॉफ़ीज़ बन जाएगी. इट विल बी ईजियर फॉर सोल्जर्स, easier for everyone across the world. तो इंस्टेंट कॉफ़ीज़ बनाई. अब चिकरी क्यों बनाई? बिकॉज इतनी प्रोडक्शन जब हुई, सब पीने लगे कॉफ़ी बहुत एविडेंट हो गया था वर्ल्ड में. अब कॉफ़ी की शॉर्टेज होने लगी, तो हमने एक और प्लांट ढूंढा, कॉफ़ी के अलावा एक और प्लांट ढूंढा विच इज़ एग्जैक्टली लाइक कॉफ़ी, एंड उसका इतना अपना कोई खास टेस्ट नहीं होता है, वो एक्वायर कर लेते हैं कॉफ़ी का. इट जस्ट एड्स टू द थिकनेस इन अ कॉफ़ी. वी स्टार्टेड मिक्सिंग चिकरी, एंड चिकरी, CHICOR, चिकरी. ठीक है, तो चिकरी मिक्स करने लगे, जिससे हमें एक तो कॉस्ट्स कट डाउन हो गए, जो कमी पड़ रही थी ग्लोबल मार्केट्स में कॉफ़ी की वो पूरी. ओके, तो साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी इज बेसिकली मिक्स्ड विद चिकरी. They put coffee here, they put hot water here, and within like 20 to 15 to 20 minutes we get a decoction here. Which we diluted further either with milk or whatever what you need. So India में कॉफ़ी इसी से इंट्रोड्यूस हुई. अच्छा. It's South Indian filter coffee. फिर हमने और टेक्निक्स सीखी, सब सीखी. अगर हम अब बात करें तो अर्बन में within the last after COVID coffee business has grown 3x. Before that, and we are still growing. Like there is obviously the Starbucks, Nescafe, Third Wave. They have brought 100% year on year. To think of that layers, I want you to consider this exactly like a mango. So what a mango has, an outer layer. If I remove the outer layer, then there is a pulp in a mango, right? If I remove the pulp, then we get the seed. But that seed still has some sticky material to it, Yes. right? That is called a mucilage. Even if I remove the mucilage, then there is a very thin layer, जिसको हम बोलते हैं parchment. ठीक है, even if I remove the parchment, तो एक छिलका होता है सीड का. Then we get to the actual seed. Okay, so the layers are outer skin, pulp, mucilage, parchment, silver skin, and then green leaf. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, this is how a silver skin looks like. See? Touch it, feel it. There's a छिलका होता है. Only cover na? Yes. So this is a silver skin of coffee. Mostly when you
These are the 3 types of green beans that are available. Would you identify which one is which? ये हनी कॉफी है, Okay. that one is a natural one. Okay. I think ये है natural शायद. Okay. And what about you? What do you think now? This is natural, ये washed. Okay. I guess. आपको क्या लगता है मैम? हमको लग रहा है ये नेचुरल वॉश ही होगा। Okay. इसमें जो वो करके ये तो रोस्ट करके Okay. So this is washed naturals and honey. Okay. Why is if we see in washed, every particle is completely same, clean, Size. very white. Size doesn't matter the size. अभी हम size के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है इसमें तो इतने बड़े साइज हो, बस ये दूसरे फार्म से आई हुई है तो इससे बड़े साइज, सिंपल, ठीक है? साइज कम्स फ्रॉम फार्म्स, फ्रॉम फ्रूट्स. दिस इज द प्रोसेस. ओके, सो दिस इज वेरी क्लीन, वेरी वाइट इन कलर एंड दिस विल, जब हम इसकी कॉफ़ी बनाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा. ओके, देन दिस इज नेचुरल. जब आप नेचुरल्स में देखो अलग अलग कलर्स हैं, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, कुछ कम डार्क है, कुछ वेरी लाइट है, राइट? तो इसकी और एंड हनी की कंसिस्टेंसी विल बी लेस. वाई? क्योंकि अगर हम इसको फर्दर रोस्ट करेंगे तो कुछ जो डार्क है ऑलरेडी वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, है ना? तो कंसिस्टेंसी थोड़ी कम रहेगी. बट वाई देयर इज अ नीड ऑफ 3 प्रोसेसेस? ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, राइट? अगेन बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर्स: फ्लेवर, बॉडी एंड एसिडिटी. नो डेंसिटी बढ़ती रहेगी, लाइक फ्रॉम लाइट रोस्ट टू मीडियम रोस्ट टू डार्क रोस्ट. ठीक है? हाउ इट इज डन इज द bitterness of a coffee keeps on increasing as I go from light to dark. ठीक है? Then the body increases at certain point but decreases eventually. Same with acidity and same with aromas. ठीक है? जैसे यहाँ पे भी हमें दिख रहा है. Everything is in very high amounts in medium roast and again in very less amounts in light roast. So that is how someone decides कि उनको roast profile क्या रखनी है. ठीक है? For better understanding हमने क्या कर दिया है, light roast, medium roast, dark roast तो है ही, but इसके बीच में एक नाम दे दिया है, light, medium, dark. ठीक है? तो मार्केट में ये सारी कॉफ़ी बीन्स मिलती है, वो आपको सिलेक्ट करना है कौन सी बीन्स आपको चाहिए. अगर वो बोलते हैं डार्क रोस्ट तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बिटरनेस हाई अमाउंट्स में हो. अगर आपको बोल दिया मीडियम तो आप मीडियम रोस्ट है तो आपको पता होगा कि बिटरनेस कम रहेगी, एसिडिटी ज़्यादा रहेगी, अरोमास ज़्यादा रहेंगे, बॉडी ज़्यादा रहेगी. तो इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू वांट टू सर्व. इफ यू वांट टू सर्व लेस बिटर कॉफ़ी, मोर फ्लेवर कॉफ़ीज, तो मीडियम रोस्ट. इफ यू वांट टू सर्व मोर बिटर कॉफ़ीज एंड जिसको आप डाइल्यूट फर्दर कर सके, जैसे मिल्क में डाइल्यूट करने के लिए बिटरनेस चाहिए, you want bitterness to dilute it with milk and you should go for dark roast coffees. ठीक है? जो हम लोग एक्सप्रेसो पीते हैं Yes. उसमें हम लोग ये मीडियम फ्लेवर को यूज़ करते हैं क्या, ना कैसे? Mostly cafes use medium roast, medium to dark roast, बीच का. Body. Yes, because they need certain body also, they need certain bitterness also, they need flavors also, all of the flavors. तो इसलिए medium to dark roast ज़्यादातर cafes use करते हैं. ठीक है? And कुछ cafes like Starbucks, they use dark roast only. Why? अब वो dark roast इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जितनी भी drinks हैं वो सब dilution से बनी है. They want to dilute and उन्होंने बहुत सारा flavors डाल रखे हैं. तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कॉफ़ी में बॉडी ना हो, एसिडिटी ना हो, कोई बात नहीं, उनको बिटर चाहिए क्योंकि बिटरनेस ही तो डाइल्यूट कर रहे हैं. और अगर वो बिटरनेस नहीं होगी तो वैसे ही कॉफ़ी का फ्लेवर बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए दे ओनली डू डार्क रोस्ट. सो इट ऑल कम्स डाउन अकॉर्डिंग टू योर मेन्यू, व्हाट यू वांट टू सर्व इन योर कैफे. उसके हिसाब से यू हैव टू सेलेक्ट अ रोस्ट प्रोफाइल. Depends on the demand. डिपेंड्स ऑन द डिमांड. Exactly. So क्या सबसे ज़्यादा- India में still Indians are more used to milk based coffees. Milk-based coffee.
like cappuccino also is a milk based, latte Yeah. also, then frappes, iced Frappes. coffees, all of these are milk based coffee. So to dilute coffees further with milk, what you need certain bitterness and certain body, very very necessary. वो आपको मीडियम में भी मिल रहा है. Medium में मिल रहा है exactly. लो मैक्सिमम लो अभी कोई यूज़ करते हैं क्या Sorry. जो लो फ्लेवर का लो रोस्ट Light roast. हाँ लाइट रोस्ट का Yes, a lot of cafes do use light roast also, but majorly for manual. Okay. ठीक है, मैनुअल ब्रूज में क्या होता है कि बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक एंड इसको बनाने के तरीके अलग होते हैं, तो जितने भी फ्लेवर्स कॉफ़ी के अंदर ऑलरेडी हैं वो टेस्ट ज़्यादा अच्छे से करते हैं रादर दैन इन एस्प्रेसो. एस्प्रेसो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो सारे फ्लेवर्स, तो आप टेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है ना. मीडियम में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन तो नहीं होगा इसमें. यस, मीडियम में भी ले सकते हैं. डार्क इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर Obviously. क्योंकि जैसे अगर आप डार्क और रोस्टेड कॉफ़ी पियोगे तो बिटरनेस बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट में आएगी. मीडियम सबसे ज़्यादा चलता है अगेन क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं Flavors हैं. और हाई अमाउंट में. अब हाई अमाउंट में फ्लेवर्स है तो आपको टेस्ट करने में भी हाई अमाउंट में फ्लेवर्स आएंगे. ठीक है ना. अलग अलग साइज मतलब अलग अलग ग्राम ही ले सकते हैं. Okay. ठीक है, तो हमारे जो कॉफ़ी की डोज है, जो ग्रामेज ऑफ कॉफ़ी है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फिल्टर बास्केट. जितना फिल्टर बास्केट में रिकमेंडेड है उतनी ही हमें डोज लेनी है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस सेज मी 14 ग्राम ऑफ कॉफ़ी, इसमें लिखा हुआ है, तो आई विल टेक अराउंड 14 ग्राम्स ऑफ कॉफ़ी. प्लस माइनस 2 ग्राम्स आर स्टिल ओके फाइन, बट इससे ज़्यादा नहीं. अगर डबल शॉट निकाला है तो भी तरह. दिस इज अ डबल शॉट, Okay. दिस इज अ सिंगल शॉट. Like मांगते ना वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अगर कोई मांगता है सपोज, उसके लिए कैसे हम इसको बढ़ा पाएंगे? वो सिंगल शॉट को डबल शॉट कर दो, दो बार है ना. लेकिन सिंगल शॉट में जो कॉफ़ी यूज़ होती है दैट इज समवेयर अराउंड 7 to 10 ग्राम्स एंड डबल शॉट में इट इज अराउंड 14 to 20 ग्राम्स. अगर डबल शॉट वाला वही दोनों साइड का ऐसे जो शॉट एक ही कप में ले लेंगे तो 2 शॉट्स ही होगा. यस, अगर मैं इससे बनाऊँ और इसको मैं सिंगल सिंगल ले लूँ तो ये 2 सिंगल शॉट हो गए और एक ही कप में ले लूँ तो एक डबल शॉट हो गया. ठीक है, इसमें मैं 14 से 20 ग्राम यूज़ कर सकता हूँ, इसमें मैं 7 to 10 ग्राम यूज़ करूँगा. तो सिंगल शॉट 7 to 10 ग्राम से बनता है एंड डबल शॉट 14 to 20 ग्राम से बनता है. ठीक है, अब जैसे इसमें लेकिन बास्केट लगी हुई है 14 ग्राम, तो आई कैन यूज़ 14, 15, 16 मैक्स. अगर मेरे को 20 ग्राम्स कॉफ़ी यूज़ करनी है तो मेरे को बास्केट चेंज करनी है. अच्छा, और अगर कम करनी है, अगर उसमें ही 12 तक कर सकते हो. 12 तक कर I सकते told you one or plus two minus. plus minus is okay. कुछ नहीं है. ये सब मेरा कॉफ़ी का क्लासमेट लोग है. हम लोग 3 ही है. कैसे टेस्ट कैसे है? बढ़िया, टेस्ट अच्छा है. towards final, towards sand बोला था ना आपने? Yes. Towards sand, yes. Yes, correct. Taste it, guys, please. Taste your espressos. How do you taste it? Yes, how do we I- taste it? I- Very good. Good question. Good question. What do you do is, for you also. First thing is you slurp it, right? Then you rotate it around your palate. The front part of your tongue will always tell you how sweet a coffee is. The back part will tell you how bitter your coffee is. And if you're generating saliva on the side of your tongue, that is because of acidity. And body is just compare it with water or a juice. This is how you evaluate body. कैसा है आपके बॉडी? Body is medium, not very watery, but not exactly like a juice. So बीच में. और अगर मैं फ्रंट पार्ट ऑफ टंग पे घुमाऊं तो इंस्टेड ऑफ स्वीटनेस में तो खट्टापन महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा. है ना? Because it is under extracted. And only थोड़ा खट्टा क्यों है? Because 3 सेकंड का डिफरेंस है. अगर ये 20 सेकंड्स में होता है या 18 सेकंड्स में होता है तो और ज़्यादा खट्टा और होता मुझे तो सलाइवा नहीं हो रहा तो है. नो एसिडिटी, but it has. I can generate saliva on the side. मेरे को भी हो रहा है. Yes.
is there a need of, अगर कॉफी पीने के बाद भी ऐसा लग रहा है that there is a need of having water, that is better. Need water. आपके साइड में सलाइवा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, अब हो रहा है, तो that is because of acidity. Okay? तो ये 3 attributes कॉफी में होंगे. Like it is bitter also, correct? It is bitter. Better, it is better. मैं बोल रहा हूँ Not as profound. बाकी चीजें भी हैं. बाकी चीज़ें Correct? भी हैं। On the random day, I will take this shot and I'll think it's. Okay. Correct. Now we'll try to. This was an under extracted shot. Now we'll try to cup and 3 cups. Okay. Only the difference is you have to take your milk up until here. Okay. In all Okay. 3 of them. Okay. इसमें यहाँ तक. इसमें यहाँ तक. Why is that? क्योंकि if it is less than this, you won't be able to stretch it. मतलब वो foam नहीं बनेगा. And if it is more than this, there is a chance of spillage. गिरने का मार आएगा। हाँ. तो इसलिए आपको मिल्क हमेशा इतना लेना. Now first things first. मिल्क के लिए मैंने चलो मान लेते हैं. और पता कैसे चलेगा वहाँ तक है? अंदर से भी दिख रहा है. अच्छा अंदर से दिख रहा है ओके अच्छा ये दूध का क्वालिटी को क्या करेंगे? ये अमूल ताज़ा से हो चाहिए? डजंट मैटर हाँ वैसे Very good question. I have taken 2 kinds of milk today. This is an Amul tone, हाँ. and we have an Amul full cream also. एंड वी ओवर ठीक है? And we have oat milk also. वैसे तो मिल्क तो मैं drink usually oat milk, but we'll try all of the 3 milks. सबका taste का पता चलेगा. एग्जैक्टली And as per my experience, we should always use tone. Full cream use नहीं करना चाहिए. वैसे generally more fat will give you more froth, but it is so much fatty this milk full cream that the intensity of coffee is very less when mixed. बहुत लोग टोन यूज करते हैं. मैंने चंडीगढ़ चंडीगढ़ को गोवा ही लोग वो यूज़ मैं करते टोन भी देखा है. हैं और हर जगह ओट मिल्क के तो ऑप्शन होते ही हाँ जी, हैं कि आपको कौन से मिल्क में कॉफ़ी इनटेक करनी है. Let's understand the science behind it. ठीक है? हर it is said that any milk you rotate at a high speed will give you froth. Doesn't matter चाहे आप blender में करके देख लो, चाहे आप घर पे frothers आते हैं वो छोटी वाली। उससे करके देख लो. तो अगर आप घुमाओगे तो froth तो बनेगा. What we are trying to do here is we are trying to rotate it and heat it at the same time so that it gives you textured froth. वो bubbles नहीं आने चाहिए. ठीक है? वो कैसे करेंगे? What I'll do is I'll keep this. एक तो ये गर्म होता है. So you always need to be careful with this. Before using it, you should on it ताकि अगर कोई पानी है तो वो निकल जाए. अच्छा. And after using also, अच्छा. because it will be in contact with milk. हर बार क्लीन भी करना Yes. And I'll give you a separate cloth. See, we've kept 3 cloths. One for portafilter, one will only be for this, अच्छा. and the third one for if you want to clean anything else. ठीक है? So these are necessary. जिसका नॉर्मल क्लोथ और एक कोई Microfiber cloth. माइक्रोफाइबर क्लोथ ओके. Okay, so I'll what I want to do is every steam wand will have 3 to 4 pores in it. This one has 4. See, 4 pores है. ठीक है. अब अगर मैं इन 4 pores को I'll align them so that 2 of the pores are dipped more and 2 of the pores are dipped less. So जो ज़्यादा dip होंगे pores, that will put your pressure downwards and it will help you heat the milk. जो कम dip होंगे pores, that will put the pressure sideways, not down but side. That will help you rotate the milk. So I want both of them. So for that, what I'll do is I'll keep that at a slanting height, and my picture should be straight. ओके तो पिक्चर विल बी स्ट्रेट और वो स्लैंट करना है. Yes. अब अगर मैं इसको डिप करूँ तो देखो आगे वाले कम डिप हैं, पीछे वाले ज़्यादा डिप हैं. यही हमें अचीव करना है. ठीक है? एंड तभी हम थोड़ा सा डिप करते हैं, बस इतना 0.5 mm टू बी एग्जैक्ट. ठीक है. ओके, देन आई डू इट, कीप इट ऑफ सेंटर. एंड जिस भी साइड, अब जैसे ये सेंटर है, आई एम डूइंग हेयर ऑफ सेंटर. ठीक है. सो आई गो स्लाइटली 1 o'clock. Why is that? 1 o'clock. So just get that simple rotation. ठीक है. अगर मैं ऑफ सेंटर इधर जाऊंगा तो आई गो 11 o'clock. ठीक है. ठीक है? समझ गया. अब मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं इधर करूँगा. Simultaneously, my one hand will be checking the temperature. Right? As soon as I know it is warm, I'll raise it चारों अंदर है. and I'll switch it off when it चारों is pores अंदर थे. hot. Yes.
So why was that also? उसका भी एक reason है. ये रोटेशन नहीं तो नहीं. तो टू मेक देखो 3 तरीके की ड्रिंक्स बनती हैं, लाटे, फ्लैट वाइट एंड कैपुचिनो. Do you know the लाटे, difference? फ्लैट वाइट एंड कैपुचिनो. यस. Do you know the लाटे और difference? कैपुचिनो में तो पता है, फ्लैट वाइट में क्या नहीं. डिफरेंस है लाटे एंड कैपुचिनो में? लाटे जो ऊपर का फ्रॉथ रहेगा वो कम रहेगा, That's small. Yes. एंड जो कैपुचिनो होगा उसकी जो भी ऊपर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हाई होगी. मतलब अगर आप डबल लेयर ऑफ मिल्क होता है शायद, और फिर स्पून पोर करोगे तो वो उस पर फ्लोट करेगा. एंड इफ आप लाटे के ऊपर स्पून रख दोगे yes. तो वो अंदर डिप कर जाएगा. That is because froth की लेवल फर्क है ना. या कैपुचिनो में फ्रॉथ ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लोट करता है. फ्लैट वाइट में सिर्फ मिल्क है ना शायद. ये लो मैम आपके लिए. फ्लैट वाइट इज और ज़्यादा लेस फ्रॉथ. लेस फ्रॉथ है. हाँ. लाटे. डबल ठीक है? शॉट फ्लैट वाइट. अब इन तीनों में अभी आपने क्या yeah, this is because if the stretching is good, your milk will automatically taste sweeter. और अगर ऐसी सेम मिल्क हो, मेरे को ये वाला मिल्क बहुत पसंद है. एक्स्ट्रा हीट कर दूंगा. एक्स्ट्रा हीट कर दोगे हो रहा है it will लाटे हो जाएगा ना. फिर अगर मैं इसी मिल्क को एक्स्ट्रा हीट कर दूंगा हाँ. तो ये मिल्क अब जल गया है. अच्छा नाउ इफ यू टेस्ट इट, वो तो हीट चल जाएगी ना. इट विल बी कड़वा. अच्छा. टेस्ट इट एवरीबॉडी वंस इन ईच प्लीज. केयरफुल, बहुत हॉट. कड़वा तो टेस्ट में चेंज हो गया. इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक दिस कॉल. हेलो. ये बड़ी कंफ्यूजन है. अभी मैं बता रहा हूँ. उसकी हॉटनेस से पता रहा है कि वो उसका टेस्ट कुछ हो चुका है. Yes. Boiled milk वैसे भी टेस्ट करता है. खत्म हो जाता है. हर अच्छी चीज बनाने के लिए बुरी चीज टेस्ट करना जरूरी है. जरूरी है. करना बारी है दीदी ना. नीचे. No, not there. आप बोलिए. You have to press that button. There is a button. इसको pressing that. बस तो हो गया मैम. बी केयरफुल, थोड़ा हॉट है बट टैप करना है आपको फिर भी. वो फिर इतना क्यों दाम है मालूम चल गया. और वो फिर बनाना तो आपने सेट आसान नहीं है. आसान नहीं है. यस. शाम तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. बहुत गर्म होता है. हाँ वो YouTube के लिए बोल रही है मैम, आप चुप रहो सारे. ये ठीक है. ऊपर ऊपर. So now take this. इतना भारी है. फर्स्ट टाइम सामान को पकड़ रहा हूँ. घुमाओ. आपको ना इसको प्रेस करने की जरूरत है. अच्छा ये सिर्फ घुमाना है. सिर्फ घुमाना है. ये हो गया है. Yes. इसके Now बाद put it. Yes. Now tap it. 90 degree angle से now. Yes. 90 degree angle. ऐसे. ओके. Yes. Good. ये हुई ना बात. फाइनली पहले रिंस कर लो. Yes. ब्रेक करना है. Automatic. इसके बाद 45 degree होगी. ऊपर भी. Yes. Yes. Now towards it. ओके. यही बात है. इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हो. डाउन. ये ब्लड कर सकते ईगर पे डाल देना. मेरा फास्ट कॉफी है. गुरु जी. ऐसा है मैं ऐसा खट्टा. लेट हो गया ना. जल्दी. खट्टा है कड़वा. बस.
चुटकी मारो सिर्फ फ्रंट पार्ट। व्हाट डू यू गेट? इज देयर एनी स्वीट पार्ट? अब पीछे लेकर जाओ बैक पार्ट ऑफ टंग पे। अब कुछ कड़वा कड़वा महसूस हुआ थोड़ा है ना? और साइड्स में क्या सलाइवा जनरेट हो रहा है टंग के साइड में? और सिर्फ क्यों मीठा मीठा लग रहा है? पूरा पी जाओ। यस, ऐसे करते करते पूरा पी जाओ। साइड में साइड मीठा और कड़वा। कड़वा और साइड में तो मीठा ही लग रहा है। मीठा लग रहा है यस, बट क्या सलाइवा थ्रू फूक आ रहा है? आ रहा है ना? दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी। तो ऐसे एसिडिटी पहचानेंगे। फ्रंट पार्ट पे आपको मीठा पता लगा, बैक पार्ट पे बिटर पता लगा। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी एस्प्रेसो सही है। अच्छा ठीक है, अगर कोई एक ही चीज़ है मान लो, जैसे पिछली बार आपने बोला फ्रंट पार्ट पे कुछ है ही नहीं मीठा, है ना, तो वो अच्छा एस्प्रेसो नहीं है। करेक्ट? ट्राई करेंगे। सेकंड से मैंने नोट नहीं किया। यस